Good morning, dear children. As you all know, in this lecture, we'll study about the third type of animal tissue. Children, till now we have finished two types of animal tissues completely. First are the epithelial tissues and second are the muscular tissues. And till last video, we have studied about three types of muscular tissues. Straighted muscle tissue, then smooth muscle tissue and cardiac muscle tissue. Along with that, we have studied that what is the difference between these three types of muscle tissues. Okay. And now we are going to start with the third type of animal tissue. It is also very important for animals for various and it performs various functions. Okay. So here we are going to start with the third type of animal tissue, that is connective tissue. So first of all, let us see why its name is connective tissue. Connective, we all know that connective means to connect, which connects one thing with another thing, one part from another part. Okay, likewise the connective tissue connects the whole body of the animal. We all know that the animals are complex organisms and they consist of various organs. Then these organs forms various organ systems, and from that a complex organism, that is animal, is formed. So these connective tissue connects these all different body parts with each other. इसीलिए हमने इनका नाम क्या रखा है, connective, which connects the different parts of the body with each other. Okay, now let us see what are the parts which are connected. So these connective tissue, this connective tissue, it connects bone to bone, that means one bone to another bone. It also connects muscle to bone, muscles को bone से connect करना, so that locomotion easy हो, movement easy हो. Then it also connects various body parts. बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भी ये क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है. व्हेन यू विल स्टडी अबाउट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यू केम टू नो दैट हाउ इट कनेक्ट्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स विद ईच अदर. सो दैट इज व्हाई इट्स नेम इज कनेक्टिव टिश्यू. क्योंकि समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है व्हाई these tissues are called as connective tissue. Okay, so you have to tell that why it is so. Second thing, this connective tissue, it performs various functions. Okay, it performs various functions, in which some functions I'm just going to tell you some functions in short, like binding. जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक अलग अलग ना हो जाए, उसके पेजेस अलग अलग ना हो जाए, कवर पेज अलग ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कराते हैं, उसे बाइंड कराते हैं. लाइकवाइज ये जो टिश्यू होता है, ये भी बहुत सारी जगहों पर एनिमल की बॉडी में ये क्या करता है, इट बाइंड्स द वेरियस टिश्यूज, वेरियस बॉडी पार्ट्स. इसलिए किसका काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैकिंग टिश्यू. पैकिंग, ठीक है. ये और क्या करता है, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को ये क्या करता है, पैकिंग करने में हेल्प करता है. एक छोटी सी बहुत ही फाइन शीथ फॉर्म करता है कुछ बॉडी पार्ट्स के ऊपर, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं. देन इफ वी सी अनदर थिंग, ये और क्या करता है, इट इज डिफेंसिव. डिफेंसिव मीन्स डिफेंस में हेल्प करता है. When you will study more about the connective tissue, different types of connective tissue, you came to know that कैसे ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करता है. ओके, सो इट इज डिफेंसिव ऑल्सो. डिफेंसिव के साथ साथ ये क्या होता है, और प्रोटेक्टिव ऑल्सो हम इसे बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू. सी, सो सच काइंड ऑफ, एंड वन मोर थिंग, इट ऑल्सो गिव्स सपोर्ट. Very important thing, it also gives support to the body. It is also a very important function. So connective tissue also gives support to the body. So many functions are there. When you will study one by one all the type of connective tissues, you came to know that how it binds, how it packs, and one important thing I forgot to tell you is it also do the function of storage. It also stores some of the important
substances for the survival of any living organism. Okay, so these are some of the functions of the connective tissue. Now, after this, we will discuss that why it is called as connective tissue, what are the various functions of connective tissue. In short, we have discussed right now, and now we are going to see what is its general structure. Children, whenever we studied any type of tissue, we have seen that they are having the different type of structure, and this structure is based on their function. This we have already studied in first chapter of biology, that is chapter 5 cell, कि कोई भी सेल होता है उसका स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इनको ये सारे इस कनेक्टिव टिश्यू को ये फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है दूसरे टिश्यू से, जैसे कि मसल टिश्यू से या फिर एपिथेलियल टिश्यू से डिफरेंट होता है, बिकॉज उसके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट है. ओके, सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज इट्स जनरल स्ट्रक्चर. जैसे एपिथेलियल टिश्यू का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था कि उसमें जो सेल्स होते थे वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाया करते थे. ऐसे ही मसल टिश्यू का भी अपना एक स्ट्रक्चर था कि जितने भी टाइप के मसल टिश्यू होंगे दे कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स. ये डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है, उसके बेसिस पर ये होता है कि वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं या बहुत स्लोली करते हैं, है ना. तो लाइकवाइज इनका भी क्या होता है, एक जनरल स्ट्रक्चर होता है. जब तक हमें जनरल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा हम उसके फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर. बेसिकली द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. कोई भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू अगर हम ले लें, मैं आपको अभी आई विल टेल यू द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो. कोई भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हम लोग लें तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हैज 2 पार्ट्स. ओके, सो लेट मी राइट कनेक्टिव टिश्यू हैज 2 पार्ट्स. चाहे वो किसी भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हम लोग स्टडी करेंगे, इसके 2 पार्ट्स होंगे. वन इज द intercellular matrix and another are cells. तो कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीजें होती हैं. एक होता है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इट इज होमोजीनियस. नाउ यू नो अबाउट होमोजीनियस बिकॉज आप लोगों ने आई थिंक केमिस्ट्री में यू हैव स्टडीड व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो होमोजीनियस जिसमें कि डिफ्रेंसिएशन हमें कितनी भी चीज़ें उसमें हों हमें नहीं पता चलेगा देखने से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, तो इट इज़ अ होमोजीनियस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. मीन्स एक सब्सटेंस होता है. दिस सब्सटेंस कैन बी इन द सेमी लिक्विड फॉर्म, दिस सब्सटेंस कैन बी इन द सॉलिड फॉर्म, दिस सब्सटेंस कैन बी इन द लिक्विड फॉर्म. चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो. ओके, लेकिन ये होमोजीनियस इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. इस होमोजीनियस इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. ये मैं आपको, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, एंड इसी मैट्रिक्स में चाहे वो सॉलिड हो या वो लिक्विड हो, दैट मीन्स फ्लूइड हो, या फिर ये क्या हो, सेमी लिक्विड हो या सेमी सॉलिड हो, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लूजली अरेंज्ड, जो कि बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू द मैट्रिक्स. दे आर वेरी लेस इन नंबर. क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, दैट मीन्स कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. One is the intercellular matrix which can be solid, which can be liquid और which can be semi-liquid और semi-solid भी हम उसे बोल सकते हैं, जिसमें loosely और in less number what are present, cells are present. उसके अंदर क्या present होते हैं, cells present होते हैं. इस homogeneous intercellular substance को हम लोग simply क्या बोलते हैं, matrix बोलते हैं. तो मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इन मैट्रिक्स सेल्स आर प्रेजेंट एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. And now let us start with the classification of connective tissue because it is not so simple. There are many types of connective tissues present in our body. So let us see what are the various types of connective tissue. Here I am going to make it in the form of that classification type. So connective tissue as I told you that this matrix is of 3 types.
Okay, it can be semi solid or semi liquid. So what we can call semi solid or semi liquid? Children, I think you have all seen or eaten jelly. तो जेली को आप क्या कहेंगे? आप उसे सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं और आप उसे सेमी लिक्विड भी कह सकते हैं. ना तो ये पूरी तरह सॉलिड होता है और ना ही ये पूरी तरह लिक्विड होता है. तो दैट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैव सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसका जो मैट्रिक्स होता है, सब्सटेंस होता है, वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड टाइप का होता है. तो हम इसको सिंपली क्या बोल देते हैं? जेली लाइक. दैट मीन्स विच हैज जेली लाइक मैट्रिक्स. इट इज वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड टाइप में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? अनदर टाइप इज द कनेक्टिव टिश्यू विच हैव सॉलिड मैट्रिक्स, जिसका मैट्रिक्स जो होता है होमोजेनियस इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सॉलिड, जो एकदम प्रॉपर सॉलिड होता है. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विच हैव सॉलिड मैट्रिक्स. और थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है. और उस लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो लिक्विड मैट्रिक्स. ओके, सो three types of matrix are there. Children, I also want to tell you that what does this matrix made up of? Basically this matrix is made up of, as I told you, it is intercellular but it is not made up of cells, क्योंकि cells तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो फिर matrix किससे बना हुआ होता है? इसमें क्या चीजें होती हैं? It consists of carbohydrates, lot of water. If it is jelly like or liquid, then it consists of lot of water, and if it is solid, it consists of very less amount of water. So carbohydrates, water according to the type of matrix, and then proteins and protein fibers. तो ये जो मैट्रिक्स होता है, ये इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड प्रोटीन फाइबर. इसका बना हुआ होता है ये मैट्रिक्स और उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक हियर. सो जेली लाइक मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स एंड लिक्विड मैट्रिक्स. अब इसके आगे भी इसमें भी क्लासिफिकेशन है. जेली लाइक मैट्रिक्स में भी देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच पजेस जेली लाइक मैट्रिक्स. सो हियर वी विल सी दैट ये जो मैट्रिक्स होता है जो जेली लाइक है, अगेन वो कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ टू टाइप. जेली लाइक मैट्रिक्स जिन कनेक्टिव टिश्यू में होता है दैट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. नाउ व्हाट आर दीज टाइप्स? जेली लाइक मैट्रिक्स में या तो हो सकता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स उसका मैट्रिक्स क्या होगा? बिल्कुल लूज, उसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे. या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो जेली लाइक मैट्रिक्स जिन कनेक्टिव टिश्यूज का होता है उसमें भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू? देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एरियोलर connective tissue and second is adipose connective tissue. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जिनका मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक होता है, उसके दो एग्जांपल्स हैं. दीज टू एग्जांपल्स वी विल स्टडी इन डिटेल. वेयर दे आर प्रेजेंट, व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज प्रेजेंट इन देम, व्हाट आर देयर फंक्शंस. ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन डिटेल. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. नाउ कम टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसका जो मैट्रिक्स होता है, जो जेली लाइक तो होता है, साथ में बहुत डेंस होता है. डेंस का मीनिंग आप लोगों को पता है, तो बहुत डेंस होता है. तो इसके भी दो एग्जांपल्स हैं. टू एग्जांपल्स वी आर हैविंग. वन इज टेंडन, अनदर इज लिगामेंट. चिल्ड्रन, इट इज गिवन इन वेरी शॉर्ट इन योर एनसीईआरटी बुक. बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है. अगर आप उसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको आई थिंक डोंट थिंक बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू इन डिटेल. सो जेली लाइक मैट्रिक्स में टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है. एक लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स जेली लाइक तो होता है लेकिन लूज होता है. इसका जेली लाइक होता है बट डेंस होता है.
लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जांपल्स हैं, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 एग्जांपल्स हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ओके, नाउ कम टू द सॉलिड मैट्रिक्स। सॉलिड मैट्रिक्स दैट मींस इसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। उसमें वो लिक्विड नहीं होता है, उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स। एज आई टोल्ड यू, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, मैट्रिक्स एंड सेल्स। मैट्रिक्स में ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो लेकिन इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, बहुत हार्ड है, सॉलिड है। ओके, सो 2 एग्जाम्पल्स आर देयर, इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, वन इज बोन एंड अनदर इज cartilage. Okay, 2 types of solid connective tissue which has solid matrix. One is bone. Bone आप लोगों को पता है, it is very hard and rigid. इससे आप समझ सकते हैं कि उसका matrix hard होता होगा, तभी तो bone भी क्या होती है, hard होती है और rigid होती है. And cartilage, you know about cartilage, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नोज की टिप पर यहाँ पर cartilage होता है, ईयर्स में ये वाला पोर्शन पूरा cartilage होता है. ओके, and many more places I will tell you more about cartilage and bones in further lectures. So they both have the solid matrix in which cells are present. Now the third type of connective tissue which has liquid matrix, यानी कि उसका matrix बिल्कुल कैसा होता है, liquid होता है, flow करता है, fluid form में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, it is also called as vascular connective tissue. वैस्कुलर से आप लोग को शायद याद आया होगा, वैस्कुलर बंडल्स हम लोगों ने वी हैव स्टडीड इन द प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में जब हमने वैस्कुलर बंडल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि वैस्कुलर बंडल का जो फंक्शन होता है, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, द सेम थिंग। इसीलिए हमने नाम दिया वैस्कुलर, बिकॉज लिक्विड मैट्रिक्स होने के कारण इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज लाइक फूड एंड ऑक्सीजन। व्हेन आई गिव यू द एग्जांपल, यू जस्ट विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो द एग्जांपल्स आर 2 एग्जांपल्स. First is blood and second is lymph. You already have studied both of them in class 7th. Okay, so blood and lymph are the examples of liquid matrix. It is also called as vascular connective tissue because it connects the whole body and it helps in the transportation of various substances like food, water, minerals, carbohydrates, proteins, and oxygen and so on. Okay, so this is the classification of connective tissue. Each and every connective tissue we will study in detail, and in the next class we will start with the first type of connective tissue, that is areolar connective tissue. Thank you.